Students, I am Monica Soul from ME International School, Nayagaon. Today we will be doing the chapter from your book First Flight, Glimpses of India. This is the 7th chapter. We will be doing part 1, A Baker from Goa. Yes, Glimpses of India. Glimpses of India means अपने इंडिया में कौन कौन सी जगह है और वहाँ पर क्या क्या चीज़ें अपन को मिलती हैं. द फेमस प्लेसेस फ्रॉम इंडिया दैट वी आर गोइंग टू सी इन दिस चैप्टर. द फर्स्ट टॉपिक इज अ बेकर फ्रॉम गोवा. नाउ इन दिस सी what images of people and of places come to your mind when you think of a country? What parts of India have you lived in or visited? ये आपको यहाँ पूछा जा रहा है कि आप कौन कौन सी चीज़ें जगह है अपने इंडिया में जो आपने विजिट करी है और आपको अगर विजिट करनी है तो आप कौन सी जगह विजिट करना चाहोगे इंडिया में. Now this is about Goa. A baker from Goa. See, this is a pen portrait of traditional Goan village baker who still has an important place in his society. The baker means what? The person who bakes bread, cake or these things. Now गोवा में ये जो बेकर्स है वो बहुत फेमस होते थे और वो आज भी उनकी वही रिस्पेक्ट और वही मतलब मांग है सोसाइटी में. एवरीवन वांट्स टू विजिट दैट बेकर शॉप एंड टू परचेज द ब्रेड और एनीथिंग वॉट एवर दे लाइक. नाउ इस स्टोरी में क्या बताया गया, लेट्स सी. Our elders are often heard reminiscing nostalgically about those good old Portuguese days, the Portuguese and their famous loaves of bread. Those eaters of loaves might have vanished, but the makers. अब वो लोग क्या बता रहे हैं, जो पोर्चुगीज थे जो गोवा में रहते थे वो लोग ब्रेड के बहुत दीवाने थे. मतलब दे यूज्ड टू लव एंड दैट स्मेल, द फ्रेग्रेंस ऑफ दैट ब्रेड व्हेन द ब्रेड वाज बेक्ड, वो उनको बहुत अच्छी लगती थी. Now here these people are vanished. The Portuguese had vanished, but that thing, that loaf of bread, the smell, that the bakers who are baking them, they are still there. They are the generations who are working in that, who are there in the job. The great grandfathers and grandfathers, their children, all they are there in that job now of baking the bread. So those people are still there. Those age-old time-tested furnaces still exist. The fire in the furnaces has not yet been extinguished. The thud and the jingle of the traditional baker's bamboo heralding his arrival in the morning. अब वहाँ पर क्या सिस्टम है, जो बेकर होता है वो अपनी उनके पास एक व्हीकल होती है जिसपे वो कुछ गाड़ी में ऐसी चीज़ बांधता है जिससे पता चल जाता है एरिया में कि ब्रेड बेचने वाला जो वेंडर है वो आ गया, हॉकर आ गया है. तो एवरीवन दे कम आउट एंड दैट स्मेल, दैट फ्रेग्रेंस ऑल्सो कम्स फ्रॉम दैट. नाउ सी कैन स्टिल बी हर्ड. नाउ सी हियर दे कैन हियर दैट साउंड ऑफ दैट बेकर्स बैम्बू heralding his arrival in the morning. Now maybe the father is not alive, but the son still carries on the family profession. This I already told you. Grandfather, great grandfather जो काम कर रहे थे वो अभी तक भी चलता आ रहा है जनरेशन से. The person who is doing that job ना, it continues. That shop जो है वो अभी भी कंटिन्यू चल रही है, तो वो काम अभी भी है. These bakers are even today known as padder in Goa. During our childhood in Goa, the baker used to be our friend, companion and guide. He used to come at least twice a day. Once when he set out in the morning on selling round. अब ये बेकर्स का क्या काम होता था, देखो वो पूरे एरिया में घूमते थे अपनी ब्रेड को सेल करने के लिए और वो एक तरह से फ्रेंडली हो जाते थे. सारे बच्चे जो भी थे सब खुश होते थे कि बेकर आ गया. और इनकी एक और भी एक बेनिफिट होता था, ये सब घरों में घूमते थे तो कोई भी न्यू पर्सन, एनीवन हु कम्स टू द प्लेस ना, वो उसको गाइड भी कर देते कि ये पर्सन यू कैन गो एंड मीट हिम ओवर देयर, ही स्टेज देयर. उनको उनका घर पता होता था क्योंकि ही यूज्ड टू गो डोर टू डोर ना फॉर दैट जॉब. सो ही यूज्ड टू help also those people and he used to empty his huge basket, पूरा एक बड़ा बास्केट जिसमें loaf of bread भरी हुई होती थी, buns और वो सब, वो उसको पूरा सेल करके डोर टू डोर जाके सेल कर देते थे. The jingles thud of his bamboo woke us up from sleep and we ran to meet and greet him. Why was it so? Was it for the love of loaf? Not at all. The loaves were bought by some paskin or bestand, the maid servant of the house. What we longed for were those bread bangles which we chose carefully. Sometimes it was sweet bread of special make. अब देखो यहाँ इन्होंने बताया कि सिर्फ loaf of bread के लिए वो लोग उसके पीछे नहीं भागते थे. That तो anyone from the house used to go to the baker's shop and they used to bring it. The maid servant or anyone. बट ये जो काम करते थे ना, वो एक बैंगल्स टाइप जो चीज़ थी वो बेक करके लाते थे वो बच्चों के लिए, वो सेल करते थे. उसके लिए बच्चों को बहुत खुशी होती थी कि द बेकर मैन ही हैज़ कम एंड नाउ वील गेट दैट बैंगल टाइप थिंग्स फ्रॉम हिम. तो वो लेने के लिए स्पेशल ब्रेड जो स्वीट ब्रेड होती थी वो लेने के लिए द चिल्ड्रन यूज्ड टू रन.
The baker made his musical entry in the scene with the jhang jhang sound of his special made bamboo stuff. One had supported the basket on his head and the other banged the bamboo on the ground. अब ये देखो हर एक का जो सेल करने का तरीका अलग होता है. Everyone knows and when the door to door the hawkers they come. अब अपने यहाँ पर जैसे हर माल वाला आता है, everyone knows अरे वो आ गया, अपन उसको कुछ चीज़ मिलेगी तो वो लेने के लिए अपन भागते हैं. द बैलून वाला जो आता है अपने घर के बाहर तो वो अलग एक साउंड क्रिएट करता है. तो इस तरह की साउंड्स होती हैं जिससे पता चल जाता है कि ये क्या बेचने के लिए आया है ना द हॉकर. तो इनको यहाँ पर इनको आइडिया था, वो बैम्बू की आवाज़ समझते ही लोग पता चल जाता था कि द बेकर हैज़ कम टू सेल द बैंगल्स विच दे लाइक्ड. गुड मॉर्निंग एंड देन प्लेस हिज बास्केट ऑन द वर्टिकल बैम्बू. वी किड्स वुड बी पुश्ड असाइड. अब सब लोग उसके पूरी उसकी गाड़ी को घेर के खड़े हो जाते थे एक दूसरे को धक्का मारेंगे कि इफ आई वॉन्ट दैट ब्रेड द स्वीट ब्रेड फर्स्ट ऐसे करके लिए दे. सी बट वी वुड नॉट गिव अप. वी वुड क्लाइम अ बेंच ऑफ द पैरापेट एंड पीप इनटू द बास्केट समहाउ. आई कैन स्टिल रिकॉल द टिपिकल फ्रेगनेंस ऑफ द. अब बच्चों को थोड़ी सब्र होता है, उनको क्या लगता है कि मैं पहले ले लूँ, तो वो लोग क्या करते थे पूरा उसका बास्केट में ऐसे ना झुक के देखते थे कि कहीं ख़त्म तो नहीं हो गई, आई विल गेट और नो. तो वो सारे लोग ना उसको घेर के खड़े हो जाते थे वो बैंगल्स के लिए. सी लोज फॉर द एल्डर्स एंड द बैंगल्स फॉर द चिल्ड्रन. देन वी डिड नॉट इवन केयर टू ब्रश आवर टीथ और वॉश आवर माउथ्स प्रॉपरली. अब उस चीज़ के लिए वो बैंगल्स के लिए बच्चे ये भी नहीं सोचते थे कि सीधे उठ के वो साउंड आया एंड दे शुड गेट अप फ्रॉम द बेड एंड रन. वो ब्रश भी नहीं किया या फेस भी नहीं धोया, कुछ भी नहीं सोचते थे बिकॉज दे वांटेड दैट, दे लाइक दैट सो मच. द बैंगल्स उनको इतनी अच्छी लगती थी कि उनको कुछ भी याद नहीं रहता था और वो जस्ट जाके उसको लेने की कोशिश करते थे. And why should we? Who would take the trouble of plucking the mango leaf for the toothbrush? And why was it necessary at all? The tiger never brushed his teeth. How hot tea would wash and clean up everything so nicely after all. अब देखो उनका क्या मानना था कि टाइगर्स कभी मुंह धोते हैं क्या, तो मतलब उनको भाना चाहिए था कि हमें कुछ भी नहीं करना उस चीज़ के लिए. हम तो ऐसे ही खाने के लिए भी तैयार है, हम लोग को माउथ वॉश करना नहीं है. हम जब चाय पियेंगे तो उससे अपने आप ही माउथ वॉश हो जाएगा. सो दीज people were not bothered to even brush their teeth and they just used to run to get the bangles, that sweet bangles, and they wanted to eat it. So this is what today also the people are liking that. Now marriages gifts are meaningless without the sweet bread known as the bowl. अब marriage वहाँ पर तो देखो जैसे अपने यहाँ स्वीट्स मायने रखती है ना, वहाँ हम लोग लड्डू और ये सारी मिठाइयाँ जो होती है बर्फी वगैरह, वो अपन के यहाँ पर इंडियन कल्चर में ये है, अपन के हिंदूज़ में. गोवा में तो कल्चर पोर्चुगीज कल्चर था तो वहाँ हर स्वीट ब्रेड मतलब उनका केक होता था या फिर एक टिपिकल चीज़ होती थी, बोल बोलते थे वो उसको. वो मैरिज जो फंक्शंस होते हैं ना उसमें ये वाली ब्रेड ज़रूर मिलती थी. जस्ट एज अ पार्टी और अ फीस्ट loses its charm without bread, not enough can be said to show how important a baker can be for village. Lady of the house must prepare sandwiches on the occasion of their daughter's engagement. Cakes and bolinhas are the must for Christmas as well as other festivals. देखो ये इनकी मिठाइयाँ हैं एक्चुअली. सैंडविचेस वो बनाते थे एंड देन ये केक्स बनाते थे. ये इनका एक मिठाई के तौर पे वो लोग मैरिजेस में या एनी फीस्ट एनी फेस्टिवल लाइक क्रिसमस होती है, दैट टाइम ऑल्सो दे मोस्टली दे यूज केक्स. You know that those people are just fond of cakes and everything. They don't know anything about the sweets which we eat. So that thing was there. The baker or bread seller of those days had peculiar dress known as the kabai. अब उनकी जो उस टाइम पे जो बेकर्स है उनकी एक ड्रेस होती थी टिपिकल, उससे पता चल जाता था कि ये बेकर है. उस ड्रेस को बोलते थे कबाई. It was a single piece long frock reaching down to the knees. In our childhood we saw bakers wearing a shirt and trousers which were shorter than full length, once and longer than half pants. Even today, anyone who wears a half pant which reaches just below the knees invites the comment that he is dressed like a padder. अब देखो एक टिपिकल ड्रेस होती है ना, उससे क्या पता चल जाता है कि ये पैडर है. पैडर मतलब वो बेक करता है, बेकिंग शॉप उसमें काम करता होगा, तो इसके जो शॉर्ट पैंट है, ट्राउजर है, जो भी है उस तरह की टिपिकल ड्रेस होती थी एक. तो इधर वो एक पहले जो था वो कबाई बोलते थे या फिर पैडर, वो ड्रेस होती थी. द बेकर यूजुअली कलेक्टेड हिज बिल्स एट द एंड ऑफ द मंथ. मंथली अकाउंट्स यूज टू बी रिकॉर्डेड ऑन सम वॉल इन द पेंसिल. अब उनके पास वो उस टाइम पे ओल्डन टाइम पे वो एक रिकॉर्ड कैसे करते थे, उन लोगों के पास कुछ नहीं होता था, या तो वो दीवार पे लिख देते थे किसी का, लाइक समवन हैज टेकन ब्रेड फ्रॉम यू एंड दे हैव नॉट पेड द मनी, सो दे हैव टू राइट इट डाउन द नेम एंड द अमाउंट विच ही हैड टू पे. तो उस तरह से वो लोग कुछ ऐसे मेंटेन नहीं करते थे कि रजिस्टर्स मेंटेन हो रहे हैं या कोई
पीस ऑफ पेपर होता वहाँ पर ही लिख देते थे, कुछ नहीं मिलता तो दीवार पे लिख दिया. दिस टाइप ऑफ थिंग्स दे यूज्ड टू डू. Baking was indeed a profitable profession in old days. The baker and his family never starved. He, his family and his servants always looked happy and prosperous. Their plump physique was an open testimony to this. Even today, any person with a jackfruit-like physical appearance is easily compared to a baker. अब देखो ये एक तरह का क्या था, उन्होंने क्या बोला है कि बेकर जो शॉप होता था, जो बेकिंग शॉप ओन करता था, वो कभी भी कुछ भी उनके पास पैसे की कभी कमी नहीं होती थी. एंड लुक वाइज भी वो जैसे एक मोटा सा पेट और एकदम प्लम्प, सारे फैमिली एकदम प्लम्प होते थे, तो उससे पता चलता है कि बेकर शॉप में काम करता है. बिकॉज दे वो प्रॉस्परस, दे वो वेरी हैप्पी एंड दे वो प्रॉस्परस. वो लोग खूब मस्त रहते थे. दे नेवर यूज्ड टू सफ़र इन एनीथिंग. उन लोगों को क्या सब चीज़ आराम से मिलती थी. So this is what we have studied about the bakers of Goa, how famous they were in those days and even today. Thank you.